Evening. This is Breaking Ground and I am Swati Joshi. Time to take a look at the biggest developments of the day so far. Let me first tell you what is the top focus at 5. Shashi Tharoor reiterates he will always put nation above party. And the outcome, Congress goes on to block him from attending party events in Kerala. Is intolerance in grand old party's DNA? We debate that today. Up next in the deep dive segment, the Supreme Court granted relief to Karnataka Chief Minister's wife in the Muda case and also teared into the Enforcement Directorate for letting itself being used for political battles. Has the reputation of the probe agency taken an irreparable hit? And on Janata's Take, we will talk about the close shave for Air India flight in Mumbai, which veered off the runway and suffered damages. Is air travel safety a big concern? We'll get you all details on that. Let's first take a look at the intolerance of the Grand Old Party. Well, you'd imagine that every political party is working for the progress of the nation and its people, and hence when a politician says that he or she is putting India first, you'd expect that statement is going to be welcomed. But it appears that isn't the case when it comes to the Congress party. Speaking at an event in Kochi, Congress MP Shashi Tharoor reiterated that he will put the nation first, and he revealed how many have been critical of him for supporting the government and the armed forces during Operation Sindoor. Let's first listen into that statement of intent. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are a means of making the nation better. So to my mind, whichever party you belong to, the objective of that party is to create a better India in its own way. Now, parties have every right to disagree about the best way of doing that, the best way of making a better India. You're following the news. A lot of people have been very critical of me because of the stand I've taken supporting our armed forces and our government and what happened recently in our country and on our borders. But I will stand my ground because I believe this is the right thing for the country. And when I speak of India, I speak for all Indians, not just those who may like my party. Well, now you would think that why would anybody have a problem with a politician who is talking about nation first, loyalty to nation and supporting the armed forces? Well, looks like the Congress party does have a problem. It didn't take long to find out who exactly he was referring to. We're talking about Shashi Tharoor, saying a lot of people were critical about him supporting the government in the armed forces. Just hours later, the state Congress unit made it clear that Shashi Tharoor will be blocked from all party events in Thiruvananthapuram going forward. Senior leader of the Congress party, K. Muralidharan, revealed that this would remain the state unit stand until Shashi Tharoor changes his stand. ഞങ്ങൾ വിട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയതായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടി വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം നിലപാട് തിരുത്താത്തോളം കാലം തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരിക്കുക. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല, പിന്നെ അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. Well, the BJP says this has yet again exposed the emergency mindset of the Congress party, where a leader has been penalized for putting India first and not the party or the Gandhi family, the so-called first family. Listen to the BJP reaction. This is the true emergency phase of Congress, the intolerance of Congress. Congress party has issued fatwa and penalized Dr. Tharoor for keeping India first, not Parivar first. Unless Dr. Tharoor says that he will put party and Parivar politics and Parivar ka hit above Rashtra hit and does politics on national security and undermines India's position and does not expose Pakistan but in fact sings paeans of Pakistan, unless he undermines Indian armed forces, they will not invite him for the program. So Congress will only invite those people in the program who do politics on national security, who put Pakistan first, who put Parivar first. All right, let's open this up and go across to our guests. We are joined by Mukesh Tyagi, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, and we have Varun Purohit with us, political analyst. Good evening to both of you. Varun Purohit, so the Congress party is intolerant towards those who put India first, जिनकी देश के साथ loyalty है, उनसे कांग्रेस पार्टी को क्या कोई प्रॉब्लम है? स्वाति जी, आपने वर्ड यूज किया इंटॉलरेंस. इससे ज्यादा टॉलरेंस क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी को चौपाटी बना रखा है. मैंने पहले भी कई बार कहा, ये जो इंट्रूडर्स है ना, घुसपैठी, जो कांग्रेस कैडर में घुसना चाहते,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्लियामेंटेरियन। आप इलेक्शन से आए हो, आप पार्लियामेंट का जो काम कर रहे हो एज ए पार्लियामेंटेरियन, वो अच्छी बात है। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में घुसना चाहते हो, पार्टी कैडर में घुसना चाहते हो, आते आप छात्र संगठन से आते, यूथ कांग्रेस से होकर के आते, सेवा दल से होकर के आते, देन आप ऐसी बातें करते हैं। अब दूसरी बात, मैं टॉलरेंस की बात आपको एक्सप्लेन कर दी। इतने टाइम तक ऐसे आदमी को, ये तो पैट्रियोट तो अब बने हैं। मैं तो पहले से आपके चैनल पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे जितने भी हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, जितने भी घुसपैठिए हैं, इंट्रूडर्स हैं या नॉन कांग्रेस आइडियल। So Varun Purohit, tell me something, and let's keep politics aside. Shashi Tharoor was purely supporting the armed forces. He was taking India's stand, and he was supporting the government when it comes to Operation Sindoor. Does that make him a घुसपैठिया in the Congress party? And why would you tolerate such a man for so long if you knew his intentions? वो आपने आंसर दे दिया। ये टॉलरेंस है कांग्रेस पार्टी की, इसको मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ सेंट्रल सिस्टम के ऊपर। अब पैट्रियोट हो गए जब नहीं, एक सेकंड सर, डोंट गिव दिस अ स्पिन। सुनिए, पहले एक पॉइंट सुन लीजिए मेरा। टॉलरेंस आपका तब तक था जब तक शशि थरूर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते थे, तब तक आपका टॉलरेंस था। टॉलरेंस नहीं होता तो सीडब्ल्यूसी से उसी दिन निकाल देते। मैं तो जब से कह रहा हूं, जब ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म बढ़ा था कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, जब मैंने कहा भाई पार्टी कैडर का कोई भी लड़े चुनाव, दैट इज राइट। अब कोई बाहर से कोई आ रहा है, संगठन का आदमी नहीं, संगठन का अध्यक्ष बनना चाह रहा है, इतनी इच्छा शक्ति जागृत हो गई। और जब मोदी जी को शिवलिंग के ऊपर बिच्छू बता रहे थे, अभी तो वैसे भी सावन का महीना है, अगर उनको अच्छा लगे शिवलिंग पे बिच्छू तो जा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से फ्री करें। इतने भी कांग्रेस को टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। जब अरे तो पैट्रियोट उनको उस वक्त बॉयकॉट कर देते ना, जब मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ, तो बॉयकॉट कर देते ना उसी वक्त बॉयकॉट क्यों करेंगे बॉयकॉट? क्योंकि आपके पक्ष में और आपके फायदे की बात हो रही थी। और सिर्फ नहीं, एक सेकंड, डेमोक्रेसी भी तो नहीं आपके हिसाब से? अगर इतना टॉलरेंस है कांग्रेस पार्टी में तो डेमोक्रेसी भी तो होगी ना। कोई भी लड़ सकता है चुनाव, उसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से आया है, चाहे किसी भी स्तर से पार्टी में पहुंचा है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो कोई भी लड़ सकता है, दैट इज डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। कोई बाहर से आकर के कैसे कब्जा कर सकता है संगठन के ऊपर? आप आओ जमीन से जुड़ाव लेकर के। और आपने जो बायकॉट वर्ड का यूज किया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वर्कर्स को, ऐसे जितने भी इंट्रूडर्स हैं उनको बायकॉट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। आप पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दीजिए ना इंट्रूडर, डिक्लेयर कर दीजिए ना कि इंट्रूडर है ये, मैं तो कि ये इंट्रूडर है, डिक्लेयर कर दीजिए। पर्सनल आदमी के लिए मैं कैसे डिस्कशन कर सकता हूं? नॉट राइट, बट यू कैन कॉल देम इंट्रूडर फॉर श्योर। आप उनको घुसपैठिया कह सकते हैं। लेट मी ब्रिंग इन मुकेश त्यागी। ओके, लेट मी ब्रिंग इन मुकेश त्यागी। सर, मुकेश त्यागी, व्हाई इज द बीजेपी सो कंसर्न? इट्स एन इंटरनल अफेयर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। शशि थरूर को वो बॉयकॉट करें, साइडलाइन करें, बीजेपी को क्या? हाउ डज दैट बेनिफिट द बीजेपी? No, we have got nothing to do. What they do with Shashi Tharoor, that is their internal politics. And of course, we can always comment on their dirty internal politics. Mr. Rahul Gandhi is so insecure. He does not want a man of Shashi Tharoor's stature to come into the forefront of the party. Party did not give him any opportunity. He has won 4-time elections from Thiruvananthapuram. Maybe he had a United Nations background. Maybe he did not come through the organized cadre of Congress, which they don't have, as a matter of fact. They don't have. Seva Dal used to exist once upon a time. That is wiped out many years back. So they have no organizational backup. Look at what is the catch-22 situation in front of Congress. They don't want to expand. They want to criticize him. They ridicule him left, right, center all the time. It is the historical. He contested election against Mallikarjun Kharge. That election was rigged to the disadvantage of Mr. Tharoor. They somehow have a visceral hatred of Mr. Tharoor because he is an extraordinary politician. Okay. World Economic Forum has declared No, him but then as why the is future. BJP is heart beating and bleeding for Shashi Tharoor? I'll just come to the point. Just give me 10 seconds. The problem, the dilemma before the Congress is in 2027 May, Kerala is going to have the election. Okay. And Shashi Tharoor has a 28.5% popularity support. He's the next chief minister because there's a double incumbency against the LDF government there. And if Shashi Tharoor is thrown out, they will have no face left at all in Kerala. They will lose in Himachal. They are on the losing front. They will lose in Telangana. Anti-incumbency. Only bastion left for them is Kerala. Okay. They did not even take it. No, but that report of his popularity was rubbished by many. I want to go across to Varun Purohit. Varun Purohit, you said कोई बाहर से आकर के पार्टी पे कब्जा क्यों कर ले? कार्डर से नहीं आया है, ग्रासरूट लेवल से नहीं आया है। तो एक बात बताइए, राहुल गांधी को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या था और कितना एक्सपीरियंस था और कितना वो ग्रासरूट लेवल से आए थे? When he was given the responsibility, कितना वो ग्रासरूट लेवल से आए थे? स्वाति जी,
राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, इंदिरा जी, सब ग्रास रूट से आते हैं। जो पैदा होता है ना कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो ग्रास रूट से ही आता है। आप ये समझो कि राहुल गांधी पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। अभी ये भी कह रहे हैं आपके बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कि भाई कांग्रेस में कोई फेस नहीं है, फेस नहीं। भाई आपको इतनी चिंता हो रही है तो मैं तो कह रहा हूँ फाइटर जेट लगने लग गए मोदी जी, तो ले लो आपके साथ। पहले तो बिच्छू लग रहे थे, लेकिन खैर वो इनका आउटलुक है, इनको किसको लेना है, किसको मंत्री बनाना है, कोई घोटाला करे वाले को लेना है, क्या करना है इनका। लेकिन आप, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म को आप यूज कर करके सेल्फ मोटिव्स के लिए, सेल्फ गेन्स के लिए, ये ना देखिए बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छा है, ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छा है इसीलिए वरुण पुरोहित, बिकॉज एक सेक्शन जो है वो आपका क्रिटिसाइज करता रहेगा, कांग्रेस का कहेगा अरे क्यों शशि थरूर को इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, वो हाईकमांड के लिए कवर अप करता रहेगा। हाईकमांड जो है इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लेगा। तो ये बैलेंसिंग एक्ट कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, टू जस्ट टू क्वेश्चन द पॉलिसी एंड काडर और ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति के पीछे अगर गांधी सरनेम लग जाए ना सर, तो उसके प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो ही जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। वुड यू नॉट अग्री? नहीं, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो एक नैरेटिव क्रिएट किया है मोदी काल में, मोदी सरकार, क्योंकि एक जेलसी की एक फीलिंग होती है। आप बताओ किसने खून दिया इनके, किसी ने दिया क्या? इंदिरा जी ने, राजीव जी ने? बात उसकी हो ही नहीं रही है, बात उसकी हो ही नहीं रही है, नहीं बात उसकी हो ही नहीं रही है, किसने शहादत दी नहीं दी वो बात नहीं हो रही है। गांधी सरनेम लग जाएगा तो शहीद कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है पार्टी में। आपको लगता है सिर्फ गांधी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी को बनाने में? दूसरे नहीं, और बाकी सब आपके लिए घुसपैठी हैं। दूसरे सांसद नहीं बन रहे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मंत्री नहीं बन रहे, दूसरे प्रतिनिधि नहीं बन रहे, खड़गे साहब नहीं बन रहे, ग्रास रूट से आके घुसपैठी वो हैं जो कांग्रेस कैडर से नहीं आए। मैं तो बिहार का एग्जांपल भी, मैं तो आगे भी जाता हूँ क्रिटिसिज्म में। आलोचना का स्थान होता है लोकतंत्र में, आलोचना का मतलब खिलाफत मूवमेंट नहीं होता है। आप, मैं तो बिहार के लिए भी जाता हूँ, आप मेरे कमेंट्स देख लो, तो बाहर के लोग आकर so the high command still not taken note of what the Kerala unit is saying to boycott and ignore and sideline शशि थरूर की? आगे कोई भी उनका जो इवेंट होगा केरला में उसमें शशि थरूर को वो इनवाइट नहीं करेंगे। हाई कमांड इज नॉट टेकिंग नोट, जस्ट waiting for some sort of a rift to create that will snowball into a massive controversy and then the high command will react and respond. हाई कमांड अगर रिएक्ट कर रहा होता तो जितने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए आदमी, तो वो अपना प्लेटफॉर्म कांग्रेस को यूज करने दे रहा है। Now I'm really confused. वरुण पुरोहित जी, आप किसकी तरफ है? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैंने कहा आलोचना का मतलब खिलाफत मूवमेंट नहीं होता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। और मैं इस बात के लिए हमेशा आपके सामने रिएटरेट करता रहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को प्लेटफॉर्म की जैसे जो यूज करते हैं, दे आर इंट्रोड्यूस। संगठन से कोई आता है, उससे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, डेमोक्रेसी। आपने 4 बार, but then there are a lot of people sir who have been made part of the Congress party who've come from various other political parties, तो वो आपका आउटसाइडर नहीं लगते हैं? वो लोग आपको आउटसाइडर नहीं लगते, पैराशूट कैंडिडेट्स नहीं लगते आपको? बिल्कुल हेलीकॉप्टर है, पैराशूट। आप पैराशूट हेलीकॉप्टर, राहुल गांधी ने जब जयपुर में मेरे घर के सामने बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन हुआ, उसमें उनको वाइस प्रेसिडेंट चुना, जब उन्होंने एक स्पीच दी कि जो हेलीकॉप्टर से आते हैं इनकी डोर काट दूंगा, आज दिन तक नहीं काटी। तो मैं वो चीज बोल रहा हूँ ना, मैं वही कह रही हूँ। मुझे अब थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा है कि आप किस तरफ हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी ब्रिंग इन मुकेश त्यागी। मुकेश त्यागी, वरुण पुरोहित इज मेकिंग योर जॉब इजियर टुडे। कांग्रेस स्पोक्समैन मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड पार्टी ऑफ इंडिया। और जिस प्रकार से वो कह रहे कि उनको निकाल देना चाहिए, वो निकाल नहीं रहे हैं। उधर दूसरे इनके नेता बोल रहे हैं कि हम उनके अगेंस्ट जो है फतवा निकालेंगे अगर उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर अपना स्टैंड नहीं चेंज किया, बिकॉज ही सिंग नेशन कम्स फर्स्ट। और उसको लेकर के क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप करिए तभी आपको केरल कांग्रेस वाले आपको इनवाइट करेंगे। अब हालत ये देखिए, इन लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है इस समय कि वहां पर केरला में इनका प्रतिनिधित्व ही खत्म होने वाला है। ये अपने सेल्फ एनिलेशन उसमें लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी खुद चुनाव हार चुके हैं अमेठी से, जो कि उनका बहुत बड़ा वो था, फिर जाके गए केरला में। तो इनके जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं वो सब विफल हो चुके हैं। Also Varun Purohit, we never saw criticism of Shashi Tharoor on such a level when he spoke about organizational changes, structural changes within the Congress party, where through his statements he gave a hint and indication that he is really not happy with the way things are functioning in the party in terms of leadership crisis or the kind of direction that a leader can give to the party. It's only now that he spoke in favor of the government on Operation Sindoor, on the issue of national integrity, on the issue of supporting our armed forces, that a lot of people seem to be really angry in the Congress.
स्वाति जी, मैं तो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो पैट्रियट हो गए, बिच्छू से पैट्रियट हो गए, फाइटर जेट दिखने लग गया। बिच्छू बंद करिए, नहीं, आगे एक मिनट, बढ़िए। वरुण पुरोहित, there's a difference. बीच मत बोलो। There is a आपके difference, समझ- but Varun Purohit, there is a difference in being a critic of the Modi government. There is no problem in being the critic of the Modi government. You can be that. That's what the opposition does. Whoever is in the opposition criticizes the one that is in power. But this is a different situation, isn't it? करेंगे। मैंने आपको कहा This is a different situation, Varun Purohit, isn't it? Where he put India first. मैंने आपको कहा इंडिया फर्स्ट तो अब आए ना उस स्टेज पे, अभी और भी आगे तो बढ़ेगी। अभी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, हम अभी पर तो चर्चा कर रहे हैं ना, तो इंडिया फर्स्ट रखने से क्यों नाराजगी है? किसी नाराजगी नहीं है। तो फिर ये क्यों डिसाइड किया केरला यूनिट ने? ये फैसला क्यों लिया केरला यूनिट ने? जब पानी सिर से लेवल से आगे ऊपर उठ जाता है ना, जब वर्कर्स, मैंने कहा ना आपने बाइकआउट वर्ड का यूज किया था ना, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। वर्कर्स को, इनको सबको बाइकआउट करना चाहिए। अगर सेंट्रल सिस्टम इनको ला के वर्कर्स के सिर पे बैठाएगा तो कांग्रेस की स्थिति आज हो रही है। वरुण पुरोहित, आप गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि वो जब देश को पहले रख रहे हैं तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर वो अपनी बात रख रहे हैं, सपोर्टिंग द फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट, द कांग्रेस पार्टी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट व्हेन यू कीप सेइंग दैट वी आर विद द गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल आपको मालूम है पूरा अपोजिशन साथ में था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के प्रधानमंत्री को अश्योर भी किया था। लेकिन अगर आप पार्टी लाइन से अलग होकर स्टेटमेंट्स जारी करोगे, अपनी इंडिविजुअल व्यूज करोगे कांग्रेस प्लेटफॉर्म को, उससे नाराजगी है। मैं तो पहले से Okay, I have to wrap up. Mukesh Tyagi, very quickly. If the Congress party is also with the government, if Shashi Tharoor is also saying the same thing, तो इसमें इंडिविजुअल लाइन कहां से आ गई? वो सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने यही है कि इनके गले से ये हड्डी जा नहीं रही नीचे। राहुल गांधी ने मिलने के लिए बोला कि मुझे शशि थरूर आके मिले। शशि थरूर रिफ्यूज टू मीट राहुल गांधी। This kind of anarchy has reached into the Congress because Shashi Tharoor stands for the nation and these people stand for the party. They will stand for Rahul Gandhi. इनके लिए राष्ट्र का कोई हित इनके उसमें नहीं है। ये तो देख रहे हैं राहुल गांधी का हित कहाँ पर है, पार्टी का हित कहाँ पर है, परिवार का हित कहाँ, देश का हित क्या भाड़ में। ये तो की स्थिति है। Okay, all right. Mukesh Tyagi and Varun Purohit, that's all the time I have for the debate. Thank you very much for joining us.